Good morning, students. Once again, we are just look at here in to the another topics which related to the ecosystem. That is the concept of the climax. What is the climax stage? What is the climax community? So that this is the concept of the climax, which regarding understanding about to the after the origin of to the new species from to the pioneer stage to the climax stage. What do you understand about to the climax? Climax community is that the community that ends succession. Community that ends to the succession. Community that ends to succession is climax, is known as climax community. You just try to understand about to the what is the processes which are going on and found to the climax community. That is the that is ecological succession. Through the ecological succession, that's obtained to the climax community, which are numbers up to the modification which takes place, that's seen from to the pioneer stage and finally to the stable community. Stable community is called to the climax community. Community that ends to the succession, which means that to the pioneer after the initiation of to the any a community from to the pioneer stage, that's always end up more stability, more stable community which are occurred, because in the population or the community that's have to the characters. That's first is the initiation, thus establishment and then decline. तो इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी की. तो कॉन्सेप्ट ऑफ द क्लाइमेक्स समझ रहे हैं कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है, इसका कैरेक्टर क्या होता है, ये प्राप्त कैसे होता है, इन सब बातों पे हम चर्चा कर रहे हैं और ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि ये एक्चुअल में क्या होता है. तो मैंने यहाँ पे लिखा कि जब कम्युनिटी दैट एंड्स टू द सक्सेशन, जब सक्सेशन की प्रक्रिया एंड हो जाती है और एक स्टेबल कम्युनिटी प्राप्त होती है, तो उसी को हम बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी. अब क्लाइमेक्स की थियरी ये है कि ये क्लाइमेक्स प्राप्त कैसे होता है, मतलब आप क्लाइमेक्स जो ये कम्युनिटी है वो क्या क्या कंटेन करता है. हाउ एवर क्लाइमेक्स कम्युनिटी फ्लक्चुएट्स अराउंड स्टेबल, जब स्टेबल रहते हुए फ्लक्चुएट करेगा रिलेटिवली कांस्टेंट एंड मीन कंडीशन. मतलब क्या हुआ, इसमें फ्लक्चुएशन होगा, फ्लक्चुएशन स्टेबल अराउंड, फ्लक्चुएशन अराउंड स्टेबल. पहली बात तो ये है कि स्टेबल होगा, मतलब एस्टेब्लिश होते हुए उसमें बहुत सारे लगातार मॉडिफिकेशन चलते रहेंगे, चेंजेस चलते रहेंगे, फ्लक्चुएशन आते रहेंगे. फ्लक्चुएशन अराउंड स्टेबल, रिलेटिवली कांस्टेंट. ये क्या होता है, इसका गुण क्या है, रिलेटिवली कांस्टेंट है, रिलेटिवली कांस्टेंट एंड एवरेज मीन. ये देखिए तीन चीजें हमने लिखी है यहाँ पे
कि फ्लक्चुएशन अराउंड द स्टेबल, रिलेटिवली कांस्टेंट एंड एवरेज मीन इसका गुण होता है। क्लाइमेक्स जो कम्युनिटी होती है ये हमेशा ये रिप्रेजेंट करती है कि स्टेबल होते हुए फ्लक्चुएशन को क्रिएट करेगी, रिलेटिवली कांस्टेंट होती है। स्टेबल कम्युनिटी तभी बोली जाती है कि वो रेदर देन द कांस्टेंट एंड विच आर फाउंड इनटू द मीन। अब मीन का क्या मतलब है? मीन तो दिस इज ड्यू टू सम irregular fluctuations. This is means that to the irregular fluctuations in the population up to the stable community in the environmental condition and to the some of the other irregularities. तो ये जो irregular fluctuation है population किसी भी climax community का, वो इन्वायरमेंटल जो चेंजेस आ रही है उसके आधार पे हो रहा है। उसमें जो है कुछ जो है चेंजेस होती हैं कॉज्ड बाय द इन्वायरमेंटल चेंजेस बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द पॉपुलेशन प्रोसेस। तो क्योंकि क्या है आपको ये पता है, यू आर ऑलरेडी नो दैट अबाउट टू द any kinds of the population which are live into the geographic area, and that to the geographic area always enhances that to the ecological condition, ecological factor, so that to the always to the in earlier to mention that we just suggest that to the any kinds of the population which are first of all rise and the grow, then to the stable, and after all to the decline, diminishing, so that this is the population processes. This is the categorized by the population process in the different kinds of the irregularities which are found in the population of the climax community due to the environmental changes. तो environmental changes के आधार पे ये सब जो है irregularities आती रहती हैं, चलती रहती हैं, और जो है climax community को represent करती हैं, जो कि population processes के नाम से जाना जाता है। ये इसका population का process है, population प्रोसेस है जिसके नाम से ये जाना जाता है, जिसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो यहाँ से आप कॉन्सेप्ट ऑफ द क्लाइमेक्स कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कम्युनिटीज दैट्स टू द एंड्स ऑफ द सक्सेशन इज नोन एज climax community. This is the kinds of the fluctuation around the stability, that is the relatively constant, average mean. तो ये सारे कैरेक्टर्स को वहाँ पे रखते हुए वो अब वहाँ पे अपने आप को इंडिकेट करता है कि ये स्टेबल कम्युनिटी है। तो पॉइनर्स कम्युनिटी से स्टेबल कम्युनिटी में कन्वर्ट होने के लिए बहुत सारे चेंजेस आते हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस आती हैं, जिसके आधार पे जैसे मैंने बताया था सीरियल फर्स्ट, सीरियल सेकंड, सीरियल थर्ड, सीरियल फोर्थ, और उसमें टू टेक टू द लॉट ऑफ द टाइम्स एंड टू द over period of the times and to the particular area, so that which are going। अब for the species population को अगर हम समझे, क्योंकि क्या है ये स्टेबल कम्युनिटी है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। अब कम्युनिटी यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करेंगे कि पॉपुलेशन और कम्युनिटी क्या है, थोड़ा सा अंदर समझ लेते हैं। पॉपुलेशन is the group of a same species and the communities which are the different group of the individuals। तो जो पॉपुलेशन होता है उसमें सेम स्पीसीज का ग्रुप होता है, और कम्युनिटी में वहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द वहाँ पे इंडिविजुअल्स होते हैं जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर हम स्पीसीज पॉपुलेशन की बात करें, क्योंकि आप स्पीसीज पॉपुलेशन आप जानते हैं, समझते हैं, तो स्पीसीज पॉपुलेशन को समझने के लिए आप भी जानते हैं कि विच आर पॉपुलेशन विच आर कैटेगराइज टू द डिफरेंट एज दैट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी, नैटिलिटी, मॉर्टेलिटी, फ्लक्चुएशन, डिस्पर्सन एंड टू द ग्रोथ फॉर्म्स and to their size, reproductive patterns, so many kinds of the characters which are have to the population in this region। So अब हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि स्पीसीज जो कम्युनिटी होती है, जैसा कि अगर कोई पॉपुलेशन इनिशिएशन से क्लाइमेक्स की तरफ जा रहा है, या फिर वो कैसे स्टेबल होता है, तो स्टेबिलिटी या उसमें आउटपुट और इनपुट की प्रक्रिया कैसे होती है, उसमें फ्लो
ऑफ द एनर्जी या द सर्कुलेशन ऑफ द मटेरियल कैसे होता है, तो उसको देखने की बात है कि हमेशा सबसे पहली बात है कि स्पीशीज पॉपुलेशन का जो कांस्टेंट फॉर्म है वो डिपेंड करता है कि वो उसमें जो आउटपुट और इनपुट होता है। एक कॉन्सेप्ट हम समझे कि पॉपुलेशन को स्टेबल रखने के लिए और जो है लगातार उसमें जो है परिवर्तन आने के लिए आप देखते हैं कि नेटिलिटी और मॉर्टिलिटी का प्रोसेस होता है। नेटिलिटी एंड मॉर्टिलिटी प्रोसेसेस, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, नेटिलिटी क्या होता है ये बॉन्ड होता है, ये डेथ होता है। ये बॉन्ड, ये बर्थ रेट होता है, बर्थ रेट, ये डेथ रेट होता है। अब आप समझ सकते हैं, तो अगर पॉपुलेशन प्रोसेसेस जा रहा है, पॉपुलेशन की प्रोसेसेस हो रही है वहाँ पे किसी भी कम्युनिटी के अंतर्गत, वहाँ पे उसका रिप्लेस में मॉडिफिकेशन हो रहा है, तो देखिए इनपुट और आउटपुट की प्रक्रिया कैसे होती है, क्योंकि उसको क्या करना है, स्टेबल रहना है, उसको जो है वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। ये तो बर्थ रेट, यहाँ पे द नंबर्स ऑफ द न्यू इंडिविजुअल विच आर एडेड इनटू द पॉपुलेशन दैट इज कॉल्ड टू द बर्थ रेट और द नेटिलिटी। तो किसी भी पॉपुलेशन में जो नए न्यू यंग वंस इंडिविजुअल जो है जन्म लेते हैं, बॉर्न करते हैं, वो नेटिलिटी कहलाता है या बर्थ रेट कहलाता है। तो अब पॉपुलेशन का ये गुण होता है कि उसमें नेटिलिटी होगा, नेटिलिटी को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, नेटिलिटी रिप्रेजेंट होता है। तो ये देखिए नेटिलिटी, बर्थ। अब बर्थ यहाँ पे पॉपुलेशन में किसी में होना ही है, तो ये क्या है, यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। फिर मॉर्टिलिटी की बात करते हैं हम, डेथ रेट, द नंबर ऑफ द डाइंग इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल की मृत्यु होती है वहाँ पे एक्सक्लूड हो रहा है, इसलिए वो डेथ रेट कहलाता है। तो ये क्या है, ये आउटपुट है। तो यहाँ से इनपुट और आउटपुट की दोनों की प्रक्रिया होती है। उसी प्रकार से जैसे आप समझ सकते हैं इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन, या फिर एनी काइंड्स ऑफ द पॉपुलेशन विच आर in the community, stable community, some of the individuals which are leave to the population and another one which are joined to the population। कुछ जो होते हैं वो पॉपुलेशन को ज्वाइन करते हैं, कुछ जो है पॉपुलेशन को लीव छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से इसकी स्टेबिलिटी मेंटेन होती रहती है, यहाँ पे स्टेबिलिटी जो है चलती रहती है और परिवर्तन आते रहते हैं। तो जैसे हमने कहा था कि इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन के बारे में, तो इस प्रकार का जो इन आउटगोइंग और इनकमिंग जो हो रहा है, तो ये सच बैलेंस ऑफ द मॉर्टिलिटी एंड द नेटिलिटी कैरेक्टराइज्ड ऑल द स्पीसीज पॉपुलेशन ऑफ द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी के अंतर्गत जो ये पॉपुलेशन है, हर प्रकार के विभिन्न प्रकार की जो पॉपुलेशन है, उसमें इस प्रकार का जो बैलेंस होता है, जो मॉर्टिलिटी और नेटिलिटी के रूप में हमने रिप्रेजेंट किया, ये यहाँ पे दिखाई पड़ता है और यहाँ पे ये चलता रहता है। तो इस प्रकार से ये, इसको हम कहते हैं, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, या फिर इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट, स्टेडी। अब ये क्या होता है भाई, डायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब जो भी कोई भी पॉपुलेशन होगा, या फिर ये इस तरीके से समझे कि जो नेचर में जो भी चीज़ें अपने आप में चलती हैं वो एक इक्विलिब्रियम लेवल तक चलती हैं और उसके बाद तो वो डिक्लाइन करती हैं, ठीक है। मतलब अराइजेशन के बाद, ओरिजिन के बाद, डेवलपमेंटल प्रोसेस के बाद, एक पीक पे जाने के बाद वो हमेशा डिक्लाइन कर जाती हैं। तो वो ऐसा, वो जो पीक होता है वो एक ऐसा लिमिटेशन होता है या फिर इक्विलिब्रियम लेवल होता है जहाँ से वो ग्रो करती हैं। तो किसी भी क्लाइमेक्स पॉपुलेशन में, क्लाइमेक्स जो कम्युनिटी है, जो उसका पॉपुलेशन है, उसमें ये जो बैलेंस जो बनता है वो उसी बैलेंस को, जहाँ पे इनफ्लक्स एंड आउटफ्लक्स या फिर एक्सक्लूड और इंक्लूड या फिर इनपुट और आउटपुट की जो प्रक्रिया हो रही है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाती है या फिर स्टेडी स्टेट कहलाती है। जैसे स्टेडी स्टेट समझते हैं कि एक ऐसा पॉइंट, ऐसा बिंदु जहाँ पे वो अपने आप को हाईएस्ट पॉइंट पे
प्रोडक्शन रेट पे दिखाते हुए अपने आप को स्टेबल दिखा सके, वहाँ पे रखता है, और उसी पीक के बाद वो धीरे धीरे डिमिनिश की तरफ जाता है। तो ऐसा एक पॉइंट, एक टॉलरेटिंग पॉइंट होना चाहिए, और यहाँ पे नेचर में वो चीज़ें बहुत ही खूबसूरती के साथ में पाई जाती हैं। दिस इज़ द वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट फॉर दैट टू द नेचर विच हैव टू मेंटेन रिटेन टू their equilibrium level, that is a steady state, for that to the input and output processes in the population or the communities or the through the environmental conditions, so that to the तो यहाँ पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम और स्टेडी स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, दिखाया जाता है। और इसके आधार पे हमने एक एग्जांपल लेते हैं, और आप देखें तो कॉन्सेप्ट ऑफ टू द क्लाइमेक्स को समझने के लिए पॉपुलेशन ऑफ द स्टेबल कम्युनिटी जो होती है, उसमें हमने एक एग्जांपल लिया। एग्जांपल लेते हैं पॉन्ड्स का एग्जांपल हमने लिया। तो पॉन्ड्स में देखते हैं कि उसमें इनफ्लो एंड आउटफ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो की प्रक्रिया लगातार जो स्ट्रीम होता है उसके साथ में ही चलता है। स्ट्रीमिंग, जो वाटर का जो स्ट्रीमिंग प्रोसेस है, जो स्ट्रीमिंग प्रोसेस चलता है, वो उसी के साथ में चलता रहता है। उसी समय यहाँ से आउटपुट की भी प्रक्रिया हो रही है, मतलब यहाँ पे इसको यहाँ पे आउटफ्लो और इनफ्लो की, और उसी समय यहाँ पे इनफ्लो की भी प्रक्रिया होती है। मतलब अगर हम सब पर्सन इंडिविजुअल की बात करें कि इस बॉडीज़ में, पॉन्ड्स में कुछ पर्सन यहाँ पे अपनी प्रक्रियाओं को कर रहे हैं, कुछ जो नहीं, जैसे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स होंगे, जैसे फाइटोप्लैंक्टन है, जूप्लैंक्टन है, फिर स्मॉल फिशेज हैं, लार्ज फिशेज हैं, जो भी इकोसिस्टम के जो मेंबर्स हैं, कंपोनेंट हैं, वहाँ पे प्राप्त होते हैं। तो वो इस स्ट्रीमिंग प्रोसेस में ही अपने स्पॉनिंग प्रोसेस को, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को, फीडिंग बिहेवियर को, या फिर ऑल द प्रोसेसेस फॉर दैट टू द ऑन द बिहाफ ऑफ टू द अलाइव, उस जिसके आधार पे वो अपने जीवन को जीते हैं, वो सारी प्रक्रियाओं को यहाँ पे करते हैं। इसलिए हमने इनफ्लो और आउटफ्लो की प्रक्रिया की बात की गई है। जैसे आप समझिए, जैसे अगर हम कहें कि अगर वहाँ पे कोई नई इंडिविजुअल स्ट्रीमिंग प्रोसेस से जुड़ रहा है तो जुड़ भी जाएगा, कोई जा रहा है तो चला भी जाएगा। तो इस प्रकार से ये पॉन्ड्स के माध्यम से, पॉन्ड्स का हमने एग्जाम्पल लिया, उसके माध्यम से हमने ये बताने का प्रयास किया कि यहाँ पर उसी रेट में इक्वल फ्लो की प्रक्रिया, इक्वल जो है रेट की प्रक्रिया यहाँ पे हो रही है। इक्वल रेट ऑफ द फ्लो इक्वल रेट ऑफ द फ्लो की प्रक्रिया हो रही है। इस आधार पे आपने क्या समझा, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द क्लाइमेक्स। तो क्लाइमेक्स क्या है? एक स्टेबल कम्युनिटी है, और एक स्टेबल कम्युनिटी वो होती है जहाँ पे वो अपने एक इक्विलिब्रियम लेवल तक पहुँच चुकी है, मोर स्टेबल है, और वहाँ पे कुछ फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, उसका एक अपन डायनेमिक कैरेक्टर्स हैं, उसका जो है एक एवरेज मीन्स है, वो रिलेटिवली कांस्टेंट होता है। जैसा मैंने बताया कि कांस्टेंट होने के बाद वो डिक्लाइन की तरफ जाता है। तो वो जिसमें हमने कहा आउटपुट और इनपुट की वो प्रक्रिया को हमेशा रिप्रेजेंट करता है, जिससे कि वो मेंटेन होके अपने आप को रिटेन एक स्टेबल फॉर्म में लेके चलता रहे और बाद में वो डिक्लाइन हो। तो उसके बाद तो उसमें बैलेंस की प्रक्रिया, जिसको इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको स्टेडी स्टेट बोलते हैं, और उसमें आउटपुट फ्लो और इनफ्लो जैसे पॉइंट्स के एग्जांपल के रूप में हमने देखा है। अब इसके बाद हम समझते हैं कि थियरीज ऑफ कॉन्सेप्ट, थियरीज ऑफ सक्सेशन क्या है, इसको समझ लेते हैं, फिर आगे हम जो है इसको चलते हैं थियरीज ऑफ सक्सेशन के बारे में।
Frederick Clements in the 19th century, according to this theory, there is only one climax community in a given climatic or geographical region. Proclimax, postclimax, disclimax, preclimax, subclimax refer to the community which are more or less stable, resembling the climax community in some respect. When the disturbed by the man or other animals is called to the disclimax community, grassland in the forest area. When the development in the arrested in the sub-final stage of the succession due to the repeated burning, cutting, grazing, and flooding, such as the subclimax or the preclimax community. Sometime the strip of the vegetation, higher life form is found within the climax as the forest strip along the stream in the grassland in the post-climax theory. Polyclimax theory are the number of European ecologists Nicholson, Champion, and the Bohr along with the Whittaker. This theory, according to this theory, the number of different climax community may be represented in the climatic and geographic region. Climax pattern theory, according to this theory, the composition and the other characters of the climax community are minor. चला 10 मिनट हुई है रुक जा वहाँ नेक्स्ट 20 मिनट हुई हो ना बस 10 मिनट हो वो लोग ना आए होते अब तो हमारे हो ही होते. There are 3 theories which are given by the succession. First is the monoclimax theory, second is the polyclimax theory, and second is the climax pattern theory. First is the monoclimax theory. Monoclimax theory. Second is polyclimax theory. Third is climax pattern theory. Climax pattern theory. So that these there are the 3 theories which are representing to the theories of the succession. There are the 3 monoclimax theory. There are the 3 theories in which the monoclimax theory, polyclimax theory, and the climax pattern theory. For that, to the understanding about the succession. So first of all, we are just take to the monoclimax theory. This theory is given by the American ecologist Frederick Clement. Frederick Clement in the 1960s, Clement given to the monoclimax theory. तो इस सक्सेशन को समझने के लिए 3 प्रकार की थियरियाँ दी गई. तो इसमें फ्रेडरिक क्लेमेंट्स ने पहली थियरी दी मोनोक्लाइमेक्स थियरी. इनके अनुसार क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस थियरी देयर इज ओनली वन क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज अ गिवन क्लाइमेटिक और द जियोग्राफिक एरियाज. तो कहने का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द मोनोक्लाइमेक्स थियरी या अकॉर्डिंग टू द फ्रेडरिक क्लेमेंट्स देयर आर द ओनली वन climax community, only one climax community in the
only one climax community in the climate or geographic region, which means that only one climax community in the climate or the geographic region. तो फ्रेडरिक क्लीमेंट्स ने ये कहा कि ये जो मोनोक्लोमन की थियरी है उसके हिसाब से जो स्टेबल कम्युनिटी होती है वो एक विशेष परिक्षेत्र में केवल एक, मतलब जो कम्युनिटी, जैसे मैंने कहा कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ द कम्युनिटी विच आर स्प्रेडिंग थ्रू ऑल द यूनिवर्स और थ्रू ऑल द वर्ल्ड, सो दैट टू द अदर रीजन्स which have to the only one community, that is referred to the by Frederick Clements in the 1960s is monoclimax theory. तो monoclimax theory में केवल एक स्टेबल कम्युनिटी को शामिल किया जाता है उस रीजन में जहाँ पे वो बिलोंग करता है, इसलिए उसको क्लाइमेटिक. तो बिकॉज these climax community which are influenced by to the different climatic and different topographic, different biotic factors, so that to the geographic regions. तो उस प्रकार से हम ये कह सकते हैं geographic regions में ये पाए जाते हैं. लेकिन अगर इसके अलावा बट ड्यू टू द टोपोग्राफिक फैक्टर, कुछ टोपोग्राफिक फैक्टर और सॉइल के टाइप के अलग अलग होने के कारण जो है ये इसमें कुछ इन्फ्लुएंसेस आते हैं. तो इन्फ्लुएंस आएंगे तो जो ये मोनोक्लाइमेक्स थियरी में कुछ डिस्टर्ब हो जाएंगे और डिस्टर्ब के आधार पे जो कुछ टर्म्स निकल के आएंगे. तो जैसे कहते हैं कि कुछ, जैसे अब आप थोड़ा समझिए, यहाँ पे क्लाइमेक्स कम्युनिटी है केवल एक उस रीजन में, तो उसको मोनोक्लाइमेक्स थियरी के अकॉर्डिंग मोनोक्लाइमेक्स कम्युनिटी बोला जाता है. लेकिन अगर कुछ जो है वहाँ पे डिस्ट्रप्शन हो रहा है, मतलब सॉइल के नेचर के आधार पे, तो कुछ अलग अलग प्रकार के अगर वहाँ पे कम्युनिटी जुड़ रहे हैं, कम्युनिटी पाए जा रहे हैं, तो उसको सबऑर्डिनेट कम्युनिटी का नाम दिया जाता है, सबऑर्डिनेट कम्युनिटी का नाम दिया गया है. और ये सबऑर्डिनेट कम्युनिटी को अलग अलग टर्म्स से जाना जाता है. ध्यान से देखिए, टर्म्स हैं, तो वो टर्म्स कैसे आएंगे, तो टर्म्स के लिए उसमें आते हैं पोस्ट क्लाइमेक्स, प्रो क्लाइमेक्स, पोस्ट क्लाइमेक्स, डिस क्लाइमेक्स. जैसे आप लिखते जाइए, प्रो क्लाइमेक्स, प्री क्लाइमेक्स, प्रो हो गया प्रो क्लाइमेक्स, पोस्ट क्लाइमेक्स, डिस क्लाइमेक्स, प्रो, पोस्ट, डिस, प्री एंड सब क्लाइमेक्स. प्री क्लाइमेक्स एंड सब क्लाइमेक्स. अब ध्यान दीजिए, ये अलग अलग प्रकार के यहाँ पे सबऑर्डिनेट कम्युनिटी यहाँ पे आपके मोनोक्लोमल थियरी के अकॉर्डिंग पाए जा रहे हैं. तो प्रो क्लाइमेक्स, पोस्ट क्लाइमेक्स, डिस क्लाइमेक्स, प्री क्लाइमेक्स एंड सब क्लाइमेक्स जो है कम्युनिटीज पाए जा रहे हैं. तो प्रो क्लाइमेक्स जो होता है, प्रो क्लाइमेक्स मोर और लेस एज रिफर्ड टू द स्टेबल कम्युनिटी. स्टेबल कम्युनिटी को मोर और लेस रूप में रिप्रेजेंट करता है. मोर और लेस मतलब अगर एक स्टेबल कम्युनिटी है वहाँ पे किसी जियोग्राफिक एरिया में, तो उसको हम प्रो क्लाइमेक्स कम्युनिटी भी बोल सकते हैं. किसको को प्रो क्लाइमेक्स कम्युनिटी. लेकिन अगर उसमें कुछ जो है मैंस के द्वारा या फिर जो है किसी अन्य एनिमल्स के द्वारा उसमें कुछ डिस्टर्बेंस किया जा रहा है, तो उसको जो है वहाँ पे डिसक्लाइमेक्स कम्युनिटी बोला जाता है. ये देखिए डिसक्लाइमेक्स, ये डिस्टर्ब्ड बाय मैन और एनिमल्स. मैन और एनिमल्स के द्वारा जब इस कम्युनिटी में, स्टेबल कम्युनिटी में कुछ डिस्टर्बेंसेस किया जाता है, तो उसको डिसक्लाइमेक्स कम्युनिटी बोला जाता है.
अब आपके पास है प्री क्लाइमेक्स एंड सब क्लाइमेक्स। इसका एग्जांपल आप कह सकते हैं, अगर क्रॉपलैंड होगा, फॉरेस्ट में क्रॉपलैंड, फॉरेस्ट जहां पे है, अगर वहां पे क्रॉपलैंड कम्युनिटी पाई जा रही है तो वो रिफर करता है मोनोक्लाइमेक्स थियरी को रिप्रेजेंट करती है। और उसके बाद जो है दो हमारे पास दो बचे हैं, पोस्ट और प्री क्लाइमेक्स थियरीज। तो जबकि कोई विशेष प्रकार का ओकेजनल चीजें आ जाएं, जैसे अगर आप बर्निंग, कटिंग, ग्रेजिंग एंड फ्लडिंग, बर्निंग, कटिंग, फ्लडिंग, तो ये बर्निंग, कटिंग, फ्लडिंग एंड ग्रेजिंग की प्रक्रिया हो, ये क्या है, ये डिस्टर्बेंसेस की एक टाइप और भी है। ये अनयूजुअल रूप से अगर हो तो बर्निंग, कटिंग, फ्लडिंग और ग्रेजिंग की प्रक्रिया अगर वहाँ पे उस प्रकार के कम्युनिटी में रिप्रेजेंट की जा रही है तो इसको प्री या सब क्लाइमेक्स कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे डिस्टर्बेंस, बर्निंग हो जाए, मतलब कोई कम्युनिटी हो वहाँ पे आग लग जाए, वहाँ पे वो कट आउट हो जाए, या फिर फ्लड, वहाँ पे बाढ़ आ जाए, या फिर वहाँ पे वो ग्रेजिंग की प्रक्रिया हो जाए, तो इस प्रकार की कम्युनिटी को क्या बोलेंगे, प्री क्लाइमेक्स या सब क्लाइमेक्स कम्युनिटी। अब पोस्ट क्लाइमेक्स कम्युनिटी उसको बोलते हैं जहाँ पर जो है ये हायर वेजिटेशन, तो कहीं पे एक ग्रासलैंड में बहुत ग्रासलैंड है और वहाँ पे वेजिटेशन वेरी हाई हो जाए, वेजिटेशन बहुत ही हाई हो जाए, तो उस प्रकार के क्लाइमेक्स को पोस्ट क्लाइमेक्स बोलते हैं। तो ये मोनोक्लाइमेक्स थियरी, जहाँ पे एक कम्युनिटी, यहाँ पे ये सारे क्या हैं, ये डिस्टर्बेंस हैं उस प्रकार के। अब दूसरी थियरी पे चलते हैं, पॉलीक्लाइमेक्स थियरी। पॉलीक्लाइमेक्स थियरी जो है अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई है, और वो वैज्ञानिक है निकोलसन, चैंपियन एंड विटेकर। निकोलसन, चैंपियन, बोर एंड विटेकर, ये वैज्ञानिकों ने मिलके पॉलीक्लाइमेक्स थियरी दी है। मतलब उन्होंने कहा कि देयर आर द 2 or more क्लाइमेक्स कम्युनिटी विच आर फाउंड इनटू द क्लाइमेट एंड जियोग्राफिक रीजन्स, दैट इज कॉल्ड टू द पॉलीक्लाइमेक्स थियरी। तो पॉलिस जो वर्ड्स है वो तभी आता है जब वहाँ पे 2 या 2 से अधिक जो है कम्युनिटी के लिए यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किया गया है। और फाइनली हम जो है लेते हैं क्लाइमेक्स पैटर्न थियरी। ये जो क्लाइमेक्स पैटर्न थियरी है, यहाँ पे ये कहा जाता है कि ये केवल एक किसी एनिमल्स, प्लांट या ये कह सकते हैं कि क्लाइमेक्स पैटर्न थियरी जो होती है वो केवल किसी एक फैक्टर पे बिलोंग ना होके बहुत सारे फैक्टर से प्रभावित होके वहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। जैसे एनिमल्स है, प्लांट है, बहुत सारे क्लाइमेटिक फैक्टर हैं, एडेफिक फैक्टर हैं, टोपोग्राफिक फैक्टर हैं। तो इन सारे फैक्टर से प्रभावित होके जब अपने आप को वहाँ पे एज अ सिस्टम रिप्रेजेंट करता है तो वो क्लाइमेक्स पैटर्न थियरी के अंतर्गत आता है। तो ये 3 प्रकार की थियरियाँ जो सक्सेशन को रिप्रेजेंट करती हैं, और आप जानते हैं सक्सेशन के अंतर्गत किसी भी एक विशेष प्रकार के इंडिविजुअल का डेवलपमेंट उसके इनिशियल से उसके मैच्योर या स्टेबल कम्युनिटी तक पहुंचने के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।